Dear students, let us now discuss the detection of elements in the organic compound. First of all, detection of carbon and hydrogen. These two elements are detected together by heating a known weight of the organic compound with anhydrous copper oxide. So, carbon of the organic compound combines with CuO to give you CO2 plus 2Cu. Similarly, hydrogen of the organic compound that also combines with CuO to give you the product H2O plus Cu. If organic compound also contains sulfur, it can also combine during this process to give you SO2 plus 2Cu. The water so produced, it is absorbed by the calcium chloride tube which is fitted outside the hard glass tube where this heating is going on, and the increase in weight of CaCl2 tube will give us the weight of water produced. Then we come to the detection of carbon and sulfur. Carbon produces carbon dioxide in this case. Now the gases are passed through lime water. If lime water turns milky, this is lime water, calcium hydroxide. When gases are passed through it, if lime water turns milky, then it indicates the presence of carbon in the organic compound. Sometimes sulfur dioxide is present, that will also turn lime water milky. This milkiness will appear. So how to differentiate between these two gases, because both of them can cause milkiness. In such cases, the gases are first of all passed through potassium dichromate solution. If it turns green, it is orange color in the beginning. If it becomes green, then it will indicate the presence of sulfur in the organic compound. Green color is due to the formation of chromium sulfate. So the differentiation between sulfur and carbon can be done by passing the gas through acidified potassium dichromate. If it becomes green, it means the sulfur was present, which was oxidized to SO2 and which reacts with K2Cr2O7 to produce green color. Now then we come to, if carbon dioxide is passed for long time through this mixture, the milkiness can disappear, क्योंकि पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है विच इज इनसॉल्युबल. अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेस में पास करते हैं तो ये जो मिल्कीनेस है दैट विल डिसअपियर, क्योंकि उसमें ट्यूब में आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है विच इज वाटर सॉल्युबल, and no milkiness will be seen here. So this was the collective detection of carbon and hydrogen in the given organic compound. Now we come to the next detection of sulfur and phosphorus, how to detect sulfur in the organic compound and how to detect the phosphorus in the organic compound. Now this is done by soda lime test. All the other elements, soda lime test. Let us first of all see the detection of nitrogen. उसके बाद हम सल्फर देखेंगे, हेलोजन्स देखेंगे, फास्फोरस देखेंगे, ये एलिमेंट्स भी हम देखेंगे. फर्स्ट इज सोडा लाइम टेस्ट. हीट 2 ml of organic compound with soda lime. Soda lime is a mixture of NaOH and quicklime. The compounds having amide group CONH2 or peptide group produce ammonia on heating with soda lime.
It shows nitrogen. This test is not given by those compound where nitrogen is present in the ring. बेंजीन टाइप रिंग है, क्यूनोलिन है, जैसे पायरीमिडीन है, उसके द्वारा ये टेस्ट नहीं दिया जाएगा. दिस इज सोडियम एसिटेट प्लस अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड. So this is soda lime test for nitrogen. Now we do another important test, that is Lassen's extract test. It is also called as sodium extract test. In this method, first of all, a sodium extract solution of the organic compound is prepared. What is done in that case? We have a very small fusion glass tube, एक उंगली के पोर जितनी ग्लास की हार्ड ट्यूब होती है, उसमें आपने एक छोटा सोडियम का मेटल डाल के बर्नर के ऊपर उस ट्यूब को गर्म करना है टिल मेटल बिकम्स रेड हॉट. उसके बाद ऐड पिंच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू दैट फ्यूजन ट्यूब. इसको फ्यूजन ट्यूब कहते हैं. दिस इज वेरी स्मॉल फ्यूजन ट्यूब. इसमें पहले आपने बर्नर के ऊपर सोडियम मेटल डाल के गर्म करना है. जब ये रेड हॉट हो जाए, रेड हॉट होने के बाद इसमें आपने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है. दोबारा फिर रेड हॉट इसको गर्म करना है. ऐसा आपने 3 फ्यूजन ट्यूब से करना है. 3 ऐसी फ्यूजन ट्यूब में पहले सोडियम मेटल लेना है, उसके बाद रेड हॉट उसको गर्म करना है, उसके बाद ऐड पिंच ऑफ द सॉल्ट टू दिस ट्यूब और फिर दोबारा रेड हॉट गर्म करना है. तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, दे विल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस यू सोडियम साइनाइड. इसी तरह सोडियम विल कंबाइन विद सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन टू गिव यू sodium sulfocyanide. Sodium can also combine with sulfur only to produce sodium sulfide. Sodium can combine with halogen of the organic compound. Halogen are chlorine, bromine, iodine and will give you NaX. So ये सॉल्ट जो है ये आपके पास फ्यूजन ट्यूब में बन जाएंगे. उसके बाद इन फ्यूजन ट्यूब्स को आपने चाइना डिश में एक डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है प्योर कोल्ड और उसमें फ्यूजन ट्यूब को ब्रेक कर देना है. ये तीनों फ्यूजन ट्यूब बारी बारी उसमें ब्रेक कर देनी है आपने. कांच भी उसमें रिलीज होगा और ये जितने भी कंपाउंड बने सारे उसमें रिलीज हो जाएंगे. उसके बाद इसको बॉयल कर लेना है बाय कीपिंग इट ऑन द बर्नर. बॉयल इट. जब आप बॉयल करेंगे तो कांच सारा अलग हो जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये जो साल्ट बने हैं दे विल ऑल कम इन दिस वाटर. इसको आपने फिल्टर करना है. जब इसको आप फिल्टर करेंगे, दिस इज नाउ कॉल्ड एज लेसेंस एक्सट्रैक्ट और इसी को सोडा एक्सट्रैक्ट के नाम से हम जानेंगे. तो ये सोडा एक्सट्रैक्ट आपने एक बड़े टेस्ट ट्यूब में प्रिजर्व कर लेना है और उसके बाद आपने 2-2 ml इसका लेके फिर आपने सभी एलिमेंट्स के लिए लेसेंस एक्सट्रैक्ट से टेस्ट करने हैं. तो पहला टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं लेसेंस एक्सट्रैक्ट से, दैट इज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. तो हाउ टू टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? टेक 2 ml ऑफ द लेसेंस एक्सट्रैक्ट. ये जो फ्यूजन ट्यूब के द्वारा आपने लेसेंस एक्सट्रैक्ट तैयार किया है, आप 2 ml लेसेंस एक्सट्रैक्ट ले लें. दिस इज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. किससे कर रहे हैं? फ्रॉम सोडा एक्सट्रैक्ट और लेसेंस एक्सट्रैक्ट जो अभी हमने सोल्यूशन बनाया. 2 ml आपने लेसेंस एक्सट्रैक्ट ले लिया, 2 ml इसमें NaOH डाल दें. उसके बाद इसको शेक वेल कीजिए. नाउ ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. Now when freshly prepared ferrous solution is added to it, the ferrous sulfate will combine with 2 NaOH to give you FeOH twice. Plus sodium sulfate. Now ferrous hydroxide so produced, it is having less greenish color. It will now combine with sodium cyanide.
give you FeCN twice plus Na2SO4. FeCN twice will further combine with 4 sodium cyanide and will give you Na4 sodium ferrocyanide, Na4 FeCN6. Now this solution is acidified with concentrated sulfuric acid and heated in the presence of O2 when ferric ferrocyanide having Prussian blue color, जिसका कलर जो है Prussian blue नस्वारी blue कलर होता है, is produced. It confirms नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को कंफर्म करेगा. तो आपने क्या करना है, FeSO4 will combine with concentrated sulfuric acid in the presence of NaO2 to give you ferric sulfate Fe2SO4 thrice plus water. This ferric sulfate will now combine with sodium ferrocyanide 2Fe2SO4 thrice to give you Fe4 FeCN6 so along with that you will have 6 Na2SO4. This is called as ferrocyanide. This is Prussian blue in color, which confirms presence of nitrogen in the organic compound. Sometimes instead of adding sulfuric acid and heating in the presence of oxygen, we add ferric chloride. That will also give the same test. अगर आप इसमें 4FeCl3 डाल देंगे तो आपको ये कलर मिलेगा. This will you will get. Along with that you will get 12 NaCl. So detection of nitrogen can be done by either acidifying the solution with H2SO4, heating in the presence of oxygen to give you ferrocyanide, or adding ferric chloride to that solution. Ferric chloride डालने पर भी आपको ferrocyanide ब्लू कलर का, प्रूशियन ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है. दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के बाद वी विल नाउ मूव टू द डिटेक्शन ऑफ सल्फर. हाउ टू डिटेक्ट सल्फर फ्रॉम लेसेंस एक्सट्रैक्ट. नाउ every time when we have to test for an element, we will take 2 ml of the lacency extract sample and then we will add the required reagent to it to find out, to detect a particular element in the organic compound. Now let us see the detection of sulfur. इसके लिए 2 टेस्ट हैं लेसेंस एक्सट्रैक्ट से. One is sodium nitroproside test. इसमें आपने 2 ml लेसेंस एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें 2 ml सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल देना है. अगर आपको वायलेट कलर या ब्लू कलर मिले इट इंडिकेट सल्फर. तो सोडियम नाइट्रोक्साइड इज Na2FeCN5NO प्लस ये Fe है प्लस Na2S. ये लेसेंस एक्सट्रैक्ट में साल्ट बना था सल्फर का. इट विल रिएक्ट टू गिव यू Na4FeCN5NOS. दिस इज सोडियम सल्फो nitroproside, which is violet in color.
it confirms presence of sulfur. Second test for sulfur is that is lead acetate test. Take 2 ml of Lason's extract, add 2 ml of lead acetate. Black color or black precipitate, so sulfur. तो आपने क्या करना है, लेड एसीटेट लेना है. It is heated with sodium sulfide. You will get 2 sodium acetate plus lead sulfide. This is black precipitate. ब्लैक प्रेसिपिटेट आते ही आप कंफर्म हो जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है. सो दिस इज योर डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. आफ्टर दिस वी विल सी द डिटेक्शन ऑफ द halogens in the organic compound. How to go for detection of halogen? First of all, we'll take 2 ml of Lason's extract and heat it with the concentrated nitric acid to remove any of the sulfide or any of the other elements in the sulfocyanide or cyanide in the form of gases. After that, we will be testing for the nitrogen. So what is done earlier? First of all, detection of halogens. 2 ml of Lason's extract plus 1 ml of concentrated HNO3. बॉयल करने पर देखिए Lason's एक्सट्रैक्ट में आपके पास NaCN बना हुआ है, सोडियम सल्फोसाइनाइड बना हुआ है. तो इनका रिमूवल आपने करना है नाइट्रिक एसिड के साथ. जब आप इसको गर्म करेंगे तो इट विल ऑल गो NaNO3 प्लस HCN, इट विल बी रिमूव्ड. इसी तरह से यहाँ भी जब हीट करेंगे तो यू विल गेट NaNO3 प्लस HCN, ये उड़ जाएंगे. और इसी तरह से Lason's एक्सट्रैक्ट में सोडियम सल्फाइड भी होता है, दैट विल आल्सो गो आउट. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल HNO3 के लेने पड़ेंगे, H2S गैस के रूप में ये भी हो जाएगा. तो इस तरह आफ्टर द रिमूवल ऑफ सल्फर, cyanide, sulfocyanide will now go for the test for halogens. Now cool this solution. जो solution आपके पास बचा है, cool the solution. Now add AgNO3 solution to it. In the presence of HNO3. HNO3 dilute आप डाल दें या पहले जो डाला हुआ है वही सफिशिएंट है. अब आपके पास सोल्यूशन में NaX बचा है, उससे ये AgNO3 कंबाइन करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा AgX. AgX में अब आपके पास AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है. अब इनको डिटेक्ट करने के लिए ये होते हैं कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट. AgCl के प्रेसिपिटेट जो हैं कर्डी वाइट होते हैं, दे आर डर्टी वाइट एंड दीज आर डर्टी येलो. कार्बन के प्रेसिपिटेट येलो कलर के होते हैं. फिर भी इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता आसानी से, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल देंगे. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर इन प्रेसिपिटेट को घोल लेता है बाय फॉर्मिंग दिस कम्प्लेक्स डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड कम्प्लेक्स एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. तो इस तरह का कम्प्लेक्स जब बन जाता है आपके पास तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ halogen. AgBr भी इसी तरीके से घुल जाता है, पार्सली घुलता है पर इतना ज़्यादा नहीं घुलेगा. दिस इज पार्शियली सॉल्युबल. तो इन दोनों में पहचान हो सकती है. AgCl में तो कुछ भी नहीं बचेगा.
AgBr में कुछ पार्ट बच जाएगा। और इसी तरह से अगर AgI के साथ आप रिएक्शन करते हैं, इट इज़ नो डिसोल्यूशन, यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होते। तो इन तीनों के केस में वी कैन शो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। इट कैन बी कंफर्म्ड थ्रू दिस रिएक्शन। Now coming to the distinction between Cl and Br, क्योंकि Cl और Br का कलर लगभग एक जैसा होता है, तो उनके बीच में हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। हाउ टू डू द डिस्टिंक्शन? between bromine and iodine। इस केस में डिस्टिंक्शन के लिए वी विल बी डूइंग द CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड लेयर टेस्ट। CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड लेयर टेस्ट, इसमें आपने क्या करना है, टेक 2 ml ऑफ द लेसेंस एक्सट्रैक्ट, add 2 ml of CCl4, shake well। इसको आप अच्छी तरीके से हिलाइए। हिलाने पर you will get 2 separate layers। ऑर्गेनिक लेयर नीचे होगी, हल्की होती है। इसमें अगर आपको ऑरेंज कलर दिख जाए तो ये Br को इंडिकेट करता है। इफ वायलेट कलर इज सेम, वायलेट कलर दिखता है तो आयोडीन इसमें रिप्रेजेंट करता है। रिएक्शन क्या होगी, आपके पास बन चुका है Br का 2NaBr, और इसमें आपने एक क्लोरीन वाटर भी 2 ml डालना है। फॉरवर्ड दैट, तो जब आपने क्लोरीन वाटर डाला है CCl4 की प्रेजेंस में, इट विल कंबाइन विद 2NaBr टू प्रोड्यूस 2NaCl प्लस Br2 गैस। ये जो Br2 है इट विल गिव द ऑरेंज कलर इन द टेस्ट ट्यूब। और इसी तरह से जो आयोडीन था उसका बन गया सोडियम आयोडाइड, और इसमें भी आपने क्लोरीन वाटर डाला हुआ है, तो प्रोडक्ट बनेगी 2NaCl प्लस आयोडीन गैस। आयोडीन जो है दैट इज वायलेट इन कलर। अगर ये वायलेट कलर पैदा करती है CCl4 लेयर टेस्ट में, तो इसमें आयोडीन मौजूद है। ये ऊपर की लेयर जो है दैट इज एक्वस लेयर, पानी वाली लेयर है। तो इस तरह से हमें डिस्टिंक्शन हो जाएगी। क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर आवर कंपाउंड कंटेन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दिस इज डिफरेंशिएशन टेस्ट फॉर द ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ वी डू द ऑक्सीडेशन टेस्ट फॉर सल्फर एंड फास्फोरस। सल्फर का हमने टेस्ट पढ़ लिए हैं, लेड एसीटेट टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन दोनों के लिए, सल्फर और फास्फोरस के लिए। तो हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस बाय ऑक्सीडेशन टेस्ट। A pinch of the organic compound is heated with fusion mixture। उसको आपने फ्यूजन मिक्सचर के साथ गर्म करना है। फ्यूजन मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ KNO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपके पास फास्फोरस है या सल्फर है, दिस इज इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हेन यू हीट इट विद फ्यूजन मिक्सचर यू विल गेट सोडियम फॉस्फेट और यू विल गेट सोडियम सल्फेट। अगर सल्फर है तो सोडियम सल्फेट बन जाता है उसका, फास्फोरस है तो सोडियम फॉस्फेट बन जाता है। इन दोनों कंपाउंड को आप क्या करें, डिसॉल्व कर लें डिस्टिल्ड वाटर में, उनको घोल लीजिए। तो ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ये दोनों साल्ट आ गए। अब सोडियम फॉस्फेट के लिए आपने क्या करना है, इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और इसको बॉयल करना है।
you will get the precipitate of sodium, phosphor, molybdenate. These are canary yellow or sarson flower yellow color. Confirms phosphorus. और अगर आपके पास सोडियम सल्फेट है तो इसमें आपने बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करना है. बेरियम क्लोराइड डालते ही यू विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट. Along with that you get 2NaCl. So appearance of white precipitate again detects the sulfur. Appearance of yellow precipitate in case of the phosphorus, you will detect the presence of phosphorus in the organic compound. So this is all about the detection of the element. And lastly we come to the detection of oxygen. There is no clear-cut test for the detection of oxygen, but we test for the compounds which are containing oxygen. For example, alcohols के टेस्ट किए जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन होता है OH ग्रुप में. कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर सकते हैं हम. एल्कोहल्स में सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कर सकते हैं. तो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उन फंक्शनल ग्रुप के जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो उस केस में हम डिटेक्ट करते हैं कि इनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा. ऑक्सीजन के लिए कोई क्लियर कट टेस्ट नहीं सुझाया गया है. So this is all about the detection, or you can say the qualitative analysis, detection of elements in the organic compound. इसके बाद फिर हम अब करेंगे कि quantitative analysis, how to know the percentage of these elements in the organic compound and how to establish molecular formula of the organic compound. This is all about this unit. Thank you very much.